Hello, students. Today we are going to discuss adjectives. What adjectives are and what are the most important kinds of adjectives. इससे पहले कि मैं आज का एडजेक्टिव के ऊपर ये अपना लेक्चर शुरू करूं, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन को नहीं दबाया है तो अभी दबा दीजिए ताकि इन फ्यूचर ऑल्सो whenever I present any lecture on any topic, it can reach to you through notification. So let's start adjectives. First of all, we would like to define what adjectives are. Namely, adjectives are the words which tell something additional about a noun or pronoun. यानी एडजेक्टिव्स ऐसे वर्ड्स हैं, ऐसे शब्द हैं जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में, उनके गुणों के बारे में, उनके दोषों के बारे में कुछ अलग से आपको बताते हैं. दे आर कॉल्ड एडजेक्टिव्स. As far as the kinds of adjectives are concerned, we have 8 kinds of or 8 types of adjectives, namely adjectives of quality, adjectives of quantity, adjectives of number, interrogative adjectives, possessive adjectives, demonstrative adjectives, exclamatory adjectives, and last of all, emphatic adjectives. But the first one, the adjectives of quality, are most important and most widely used in our language. And I would like to tell you what adjectives of quality are. Actually, these are the adjectives or these are the words which tell us the quality of a noun or pronoun. For example, we can say Sita is an intelligent girl. Now the word intelligent tells something about some quality of the girl Sita. In the same manner, we can say Everest is a high mountain. Now the word high tells us about the height of that mountain. Thus, there are so many words which describe, which qualify, or which tell us about the quality of nouns and pronouns. और ये सारे के सारे शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, इनको हम लोग एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी बोल देते हैं. Here I would like to tell you that these adjectives of quality can be divided into 3 categories, and these 3 categories of adjectives of quality are called the degrees of adjectives. यानी ये जो हमारे adjectives of quality हैं, इनको हम लोग 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं और इन 3 टाइप्स को हम लोग एडजेक्टिव्स की डिग्री कहते हैं. जब हम छोटी क्लासेस में थे तो जिस तरह से हमें वर्ब की फॉर्म्स याद करवाई गई थी, उसी तरह से हमें डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स भी याद करवाई गई थी. फॉर एग्जाम्पल, वी वर टोल्ड दैट the word high or the adjective high has 3 degrees: high, higher, and highest. In this way,
each adjective of quality has 3 degrees that we have learnt or we have to learn. Now further, these 3 types of adjectives or the degrees of adjectives, इनका जो यूज है वो हम लोग 3 की बजाय 4 ढंग से कर सकते हैं. But before we enter into the details of these adjectives of quality, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हम 3 नाम दे रहे हैं adjectives को, वो नाम क्या हैं? The 3 degrees of adjectives are positive degree, comparative degree, and superlative degree. First we take positive degree. Now this positive degree can be used in 2 ways. ये जो पॉजिटिव डिग्री है इसको हम लोग 2 रूपों में या 2 तरीकों से प्रयोग कर सकते हैं. इसका पहला प्रयोग ये है कि हम 2 चीज़ों को कंपेयर करें, लेकिन उन दोनों में से किसी को भी ज़्यादा अच्छा या कम अच्छा न बताएं. दैट मीन्स वी मेक एन इक्वल कंपैरिजन. समान तुलना जब हम 2 चीज़ों के बीच में या 2 नाउन या प्रोनाउंस के गुणों के बीच में करना चाहते हैं तो हम लोग यूज़ करते हैं पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स. लेकिन यहाँ सभी स्टूडेंट्स ध्यान रखें कि जब हम पॉजिटिव डिग्री को इस तरह से यूज कर रहे होते हैं कि हम 2 नाउन्स या प्रोनाउंस का इक्वल कंपैरिजन करते हैं, तो कीप इन माइंड दैट वी हैव टू पुट as which is a conjunction on both side of our degree. Whatever adjective we take, we have to use as on both side of it when we are making an equal comparison with the help of that adjectives. अभी मैंने एक सेंटेंस बोला था कि सीता is an intelligent girl, but मान लीजिए कि हमारी क्लास में एक लड़की गीता भी है, वो भी इंटेलिजेंट है, और हम इन दोनों लड़कियों की इंटेलिजेंस का जो कंपैरिजन है, उनके इस गुण का जो कंपैरिजन है, उसको इक्वल बताना चाह रहे हैं. मीन्स कि हम ये बताना चाह रहे हैं कि सीता जितनी इंटेलिजेंट है, गीता भी उतनी ही इंटेलिजेंट है. मतलब न तो हम सीता को ज़्यादा इंटेलिजेंट बता रहे हैं, न गीता को. इन सच केस वी यूज पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव and we'll say Sita is as intelligent as Geeta. इस बात को स्टूडेंट्स जरूर नोट करें कि जब इक्वल कंपैरिजन के लिए हम किसी भी एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री को यूज कर रहे होते हैं तो उसके दोनों साइड में एज लगाना जरूरी है. जैसा मैंने अभी किया कि सीता इज एज इंटेलिजेंट एज गीता. This was the first use of our first kind of degree, that is positive degree. But positive degree can be used just to tell the quality of some noun or pronoun also, without making any comparison of that quality with other pronoun or with other noun. हम सिर्फ किसी नाउन या प्रोनाउन की जब क्वालिटी बताना चाहते हैं, उस केस में भी हम लोग पॉजिटिव डिग्री को यूज करते हैं. जैसे मैंने पहले सेंटेंस बोला था जिसमें मैंने सीता के इंटेलिजेंस का किसी के साथ कंपैरिजन नहीं किया था. मैंने कहा था सीता इज एन इंटेलिजेंट गर्ल. द सेकेंड काइंड ऑफ डिग्री ऑफ एडजेक्टिव इज कॉल्ड कंपैरेटिव डिग्री. जैसा कि इसके नाम से ही जाहिर हो रहा है कि इस डिग्री की सहायता से हम लोग 2 नाउन्स या 2 प्रोनाउंस की किसी विशेष क्वालिटी, विशेष गुण या दोष का कंपैरिजन करते हैं.
और अब की बार वो कंपैरिजन इक्वल नहीं भी हमने सीता और गीता के इंटेलिजेंस को इक्वल कंपैरिजन करते हुए बोला था कि सीता इज एज इंटेलिजेंट एज गीता। अब की बार हम ऐसा नहीं कहेंगे, या तो हम सीता को ज़्यादा इंटेलिजेंट बताएंगे या गीता को। और ऐसा करने के लिए हम लोग कंपैरेटिव डिग्री, किसी भी एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने पहले बताया था कि पॉजिटिव डिग्री जब हम लोग यूज़ करते हैं तो उसके दोनों तरफ एज लगाते हैं। तो जब हम लोग कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं तो हम कंपैरेटिव डिग्री के बाद में हमेशा THAN देन का प्रयोग करते हैं। अगर आप देन का प्रयोग नहीं करते कंपैरेटिव डिग्री के बाद में तो वो सेंटेंस आपका गलत माना जाएगा। तो अब मैं एग्जांपल देके बताता हूँ कि किस तरह से कंपैरेटिव डिग्री का हम लोग यूज़ करते हैं। हम कहेंगे कि सीता इज मोर इंटेलिजेंट देन गीता। नाउ दिस इज अनइक्वल कंपैरिजन ऑफ द क्वालिटीज ऑफ टू गर्ल्स। जो इंटेलिजेंस है, अब की बार हमने उनका इक्वल कंपैरिजन नहीं किया, बल्कि हमने सीता को ज़्यादा इंटेलिजेंट बता दिया गीता से। So this was the second degree of adjective that is called comparative degree. Now we come to the third degree. This third degree is called superlative degree of adjective. In this case, or while using the superlative degree, we compare one noun or one pronoun with many of the nouns और many of the pronouns. एक नाउन का कंपैरिजन हम बहुत सारी नाउन्स, उस तरह की बहुत सारी नाउन्स या प्रोनाउंस के साथ करते हैं, और जिस नाउन का हम जिक्र कर रहे हैं उस नाउन को हम उसके साथ की या उसकी तरह की जो नाउन्स या प्रोनाउंस हैं उनमें सबसे ज़्यादा अच्छा गुण वाला या सबसे ज़्यादा दुर्गुण वाला सिद्ध करते हैं, और उसके लिए हमें यूज़ करना पड़ती है सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स। ध्यान रखें स्टूडेंट्स कि जैसे अभी मैंने बताया कि पॉजिटिव डिग्री के दोनों तरफ एज का यूज़ होता है, कंपैरेटिव डिग्री के बाद में देन का यूज़ होता है। इन द सेम मैनर द THE, द डेफिनेट प्रोनाउन is used before the superlative degrees. अभी हम लोग सीता और गीता की बात कर रहे थे, लेकिन अब हम ये कहना चाह रहे हैं कि सीता जो है वो अपनी पूरी क्लास में जितने भी उस क्लास के बॉयज़ या गर्ल्स हैं उनमें वो सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है। ऐसा कहने के लिए या उसको सुप्रीम डिक्लेयर करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, और हम कहेंगे कि सीता इज द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन द क्लास। सीता इज द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन द क्लास। तो स्टूडेंट्स, ये थे एडजेक्टिव्स, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो एडजेक्टिव्स में माना जाता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, उसकी मैंने आपको डिटेल्स बताई हैं। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ऑल द स्टूडेंट्स टू रीड एंड लर्न मोर एंड मोर ऑफ डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स। मतलब आपको जहाँ से भी, आजकल तो नेट पे उपलब्ध हैं, जहाँ से भी एडजेक्टिव्स की डिग्री की कोई चार्ट मिलता है, कोई शीट मिलती है, वर्कशीट मिलती है, तो वहाँ से ज़्यादा एडजेक्टिव्स की जो 3 डिग्रीज होती हैं उनको याद करने की कोशिश कीजिए। जब बहुत सारे एडजेक्टिव्स की डिग्री आपको याद हो जाएंगी तो इट विल हेल्प यू अ लॉट while writing or while speaking this particular language, that is English. Only this much for today. We'll meet some other time. Thank you.